Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Subra Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about Amazon Basin, climate and rainforest. Today, we will read about another topic, the Ganga and Brahmaputra. Basin. As we have already know about, the Ganga is the holy and major river of Indian subcontinent, and the Brahmaputra is one of the most important river. Both are making the world largest delta, that is known as Sundarban Delta. Sundarban Delta is famous for its biodiversity. So before starting about Ganga and Brahmaputra basin, I am telling you, the Ganga originate from the Gangotri glacier and make the delta with Brahmaputra. The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा और उसकी सहायक नदियां और साथ साथ ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं. द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, मीन्स the area of Ganga and Brahmaputra basin lies between (10° north to 30° north. As we have already know, the area lies between the 10° north to 10° south is known as the equatorial region. After that, the area between 10° north to 30° north is known as the subtropical region, because here the climate is neither too cold nor too hot. Okay, so this region is known as subtropical region. The tributary of the river Ganga, like the Ghagra, the Son, the Chambal, the Kosi, and the tributary of Brahmaputra, drain it. The plains of the Ganga and Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalaya and Sundarban Delta are the main feature of the Ganga Brahmaputra basin. Okay, मतलब
गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ की पहाड़ियाँ और इसके नीचे पाई जाने वाली तलहटी, और साथ साथ जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा है जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, ये यहाँ के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरिया, मतलब वी हैव सीन द ऑक्सबो इन plain area which are looking like the dot, and as we have already know, the Oxbow Lake made by the meander. When the river come in the plain, then it will take the twist and turn. It make the meander, and after some time it come closer and closer and make the shape like this, and then after it is separated from the river. This is known as the oxbow shape। मतलब ये जो है बेटा ऐसा होता है मियंडर, जब ये जो मियंडर होता है जब रिवर घूमती है तो इस तरह की जो आकृति बनती है इसको बोलते हैं मियंडर। और मियंडर जब एकदम नज़दीक हो जाता है तो कुछ इस तरह की आकृति को बना लेता है, और धीरे धीरे नदियाँ जब अपना रास्ता बदलते रहती हैं तो इस तरह की आकृतियों को नदियाँ छोड़ देती हैं, तो इसको बोला जाता है ऑक्सबो शेप। ठीक है, ये ऑक्सबो शेप इस तरीके का होता है। क्लियर? The area is dominated by monsoon climate. It means the Ganga and Brahmaputra basin basically dominated by monsoon climates। ओके, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का ये जो क्षेत्र है ये मुख्यतः जो है बेटा यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है मानसूनी जलवायु। द मानसून ब्रिंग रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। यहाँ पर जो बारिश होती है वो बेटा मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक होती है। ठीक है। इन हेयर द समर आर हॉट एंड द विंटर आर कोल्ड, मतलब कि यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें अत्यंत ज़्यादा तापमान होता है जिसकी वजह से बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, और जो विंटर होता है वो ठीक इसके एडवर्स कंडीशन में होता है कि यहाँ पर विंटर में जो है बेटे क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है जिसकी वजह से अधिकतम ठंडक यहाँ पड़ती है। क्लियर? देन लुक एट द मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड फाइंड द स्टेट which the Ganga Brahmaputra basin lies। When you read about the Ganga Brahmaputra basin, you must open your book and look the area where the Ganga and Brahmaputra lies। Okay, the basin area has varied topography। Topography means structures, मतलब जो हमारे ये जो बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र की, ये बेटा वेरी टोपोग्राफी यहाँ पाई जाती है। द एनवायरमेंट प्लेज डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर सबसे प्रमुख रोल होता है एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट जो है बेटा यहाँ सबसे अच्छा रोल अदा करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर? द माउंटेन एरिया विथ स्टीप स्लोप हैज इनहॉस्पिटेबल टेरेन, मतलब यहाँ पर जो खड़ी ढाल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं
इस बेसिन में, वो बेटा इनहॉस्पिटेबल टेरेन होती है। मतलब यहाँ पर ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे लोग रह नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इनहॉस्पिटेबल टेरेन, ठीक है। देन देयरफॉर लेस पॉपुलेशन लिव इन दिस एरिया, यही कारण है कि यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। द प्लेन एरिया प्रोड्यूस द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब जो प्लेन एरिया है यहाँ जो बेटा जिसको कहते हैं मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बेटा सबसे सघन जो है जनसंख्या पाई जाती है। क्यों बेटा, जब प्लेन एरिया होता है तो आदमी उस पर आसानी से बस्तियां बना लेता है, मतलब दे कैन इजिली मेक सेटलमेंट हियर बिकॉज द ऑल द एरिया आर प्लेन एंड हियर वी विल फाउंड द dense population. Okay, the soil of plain is fertile and agriculture is the main occupation of the people of plain area. Okay, तो बेटा जो यहाँ पे प्लेन होता है वो बहुत फर्टाइल होता है और यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। ओके, और why here the most of the crops are grown, because the area are fully flat and it is given the suitable condition for the agriculture. Okay, the density of population plain is very high, the population density in the plain are very high, मतलब जो यहाँ पर population density क्या होती है, the number of people live in a kilometer is known as the population density. Like the highest population density in India is Bihar. Bihar have the highest population density in India. Okay, तो बेटा population density क्या होता है, 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ये बोली जाती है जनसंख्या घनत्व। मतलब जितने क्षेत्र में जो है, जैसे प्रति किलोमीटर क्षेत्र में जब संपूर्ण एरिया को जो है संपूर्ण पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है बेटा जनसंख्या घनत्व आता है, और इससे हमें ये पता चलता है 1 किलोमीटर में लगभग कितने लोग औसत में रहते हैं, और यही जो है बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर? देन द मेन क्रॉप ऑफ द प्लेन is paddy, and since cultivation of paddy required sufficient water, it is grow in the area where the amount of rainfall is high। मतलब जो हमारा धान होता है या हमारी जो है खेती होती है पैडी की बेटा, ये जो है इसको ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर अधिकतम वर्षा होती हो, और अधिकतम वर्षा जहाँ पर होगी वहाँ पर इसके लिए जो है उचित कंडीशन होगी। ओके, देन wheat, maize, gram and millet are the other crops that are grow in the plain area। मतलब धान के अलावा यहाँ पर जो अन्य खेती होती है उसमें जो है गेहूं पैदा होता है, मक्का होता है, और साथ साथ चना होता है, और बाजरा भी यहाँ पर पाया जाता है। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर कैन एंड जूट आर आल्सो ग्रो इन द प्लेन एरिया। जो कैश क्रॉप होती हैं वो बेटा यहाँ पर उगती हैं, जैसे कौन कौन सी, शुगर कैन माने गन्ना, और साथ साथ जूट। ओके, बनाना प्लांटेशन सीन इन द सम एरिया ऑफ द प्लेन्स। कहीं कहीं जो है हमें क्या केले के भी साक्ष्य मिलते हैं, कहीं कहीं पर हमें केले के भी जो है प्लांटेशन मिलते हैं, जिसकी जो कुछ एरिया पर प्लेन के, ठीक है। द वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रो इन प्लांटेशन। जो एरिया है बेटा किसका, वेस्ट बंगाल का और असम का, यहाँ पर बेटा चाय की खेती की जाती है, ठीक है, चाय के बागान लगाए जाते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ द सिल्क वार्म इन
पार्ट ऑफ बिहार, मतलब बिहार के कुछ क्षेत्रों में बेटा क्या होता है कि जो है रेशम के कीटों से जो है रेशम निकाला जाता है, ठीक है। और एंड इसके अलावा कुछ जो है सिल्क जो है असम से भी निकाला जाता है। इन द माउंटेन एंड हिल वेयर द स्लोप आर जेंटली क्रॉप आर ग्रो इन टेरेस एंड, मतलब जो जहाँ पर जो है बेटा क्या कहते हैं माउंटेन, जहाँ पर जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर भी कहीं कहीं हमें हल्का ढलान मिल जाता है और सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। तो बेटा जहाँ सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं वहाँ पर भी खेती संभव होती है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, ये होता है बेटा आपके माउंटेन एरियाज में। देन द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, मतलब यहाँ का जो वेजिटेशन है, यहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो जो है बेटा लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे माउंटेन में डिफरेंट टाइप की जो है वेजिटेशन पाई जाएगी, और इसके बाद जो है प्लेन में डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन पाई जाएगी। इस तरह से यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके की जो है वेजिटेशन पाई जाती है। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुबस फॉरेस्ट और ट्रीज आर ग्रो, ओके, along with the साल, टीक एंड पीपल, मतलब यहाँ पर जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पर जो बेटा पेड़ होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज होते हैं। मतलब ये डेसिडुअस ट्रीज कैसे बेटा, उनके साथ पत्ते हमेशा झड़ते रहते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या है यहाँ पर साल, टीक और पीपल जैसे जो है डेसिडुअस प्लांट्स जो है पाए जाते हैं, ठीक है। देन द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट, और यहाँ पर जो है कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। जो डेल्टा एरिया यहाँ का, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन द पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ओके। तो बेटा जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में, सिक्किम में और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में, ठीक है। कोनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फर कैन बी सीन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट इज कूल एंड स्लोप आर स्टिप। इट मीन्स द कोनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड इन द माउंटेन एरिया, मतलब माउंटेन एरिया जहाँ पर बेटा ठंडक ज़्यादा पड़ती है, साथ साथ वहाँ पे खड़े और तीव्र ढाल होते हैं, स्लोप ज़्यादा होती है, वहाँ पर बेटा क्या होता है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन से, कोनिफेरस। कोनिफेरस फॉरेस्ट में बेटा जो है वो ऐसे होते हैं कि उनकी पत्तियाँ जो है थोड़ी सी जो है मतलब कोन शेप लाइक होती हैं, तो वहाँ मतलब वो वहाँ की कंडीशन मतलब माउंटेन की कंडीशन से जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। वाइल्ड लाइफ इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, देयर इज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। एलिफेंट, टाइगर्स, डियर एंड मंकीज आर कॉमनली फाउंड इन दीज एरियाज। इन क्षेत्रों में हाथी, चीते, हिरन और साथ साथ जो है बंदर पाए जाते हैं, ठीक है। द वन हॉर्न राइनोसेरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बेटा एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, मतलब उसके केवल एक सींग होती है। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर फाउंड, मतलब जो ये जो डेल्टा क्षेत्र है जिसको आप सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहते हो, यहाँ पर बेटा बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसके अलावा इन सुंदरबन डेल्टा क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर आल्सो फाइंड। यहाँ पर जो है बेटा क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ और एलिगेटर जिसको आप घड़ियाल कहते हैं, तो जो है बेटा ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड इन द फ्रेश रिवर वाटर एंड लेक, मतलब जो यहाँ पर जली जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रचुर और मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो बेटा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर जलीय जीवन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है साफ पानी की नदी और जो है साफ पानी की झीलें पाई जाती है। एंड द बे ऑफ बंगाल सी, और बंगाल की खाड़ी में भी मतलब यहाँ पर
जो है एक्वेटिक एनिमल की जो है प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज ऑफ द फिश आर द रोहू, कतला एंड हिल्सा फिश। ओके, जो यहाँ पर सबसे मुख्य जो पॉपुलर वैरायटी है जो है आपके फिश की, वो है रोहू, कतला और हिल्सा। ये 3 बहुत मुख्य जो है मछलियाँ हैं यहाँ की जो पाई जाती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एरिया लाइज नियर द वेस्ट बंगाल, सो द राइस एंड फिश इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल हु लिविंग इन दिस एरिया। मतलब यही कारण है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं बेटा, उनका जो है मुख्य भोजन क्या होता है? उनका मुख्य भोजन होता है मछली और चावल। तो बेटा ये जो है इसके बारे में था। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में डिफरेंट टाइप के जो है लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि जो है मतलब अलग अलग वेरिड जो है वेजिटेशन भी यहाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की जो है वेजिटेशन होती है। जैसे जो माउंटेन होती है वहाँ पे जो है कोनिकल जो है वेजिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि कोनिकल वेजिटेशन इसलिए होती है कि वो माउंटेन एरिया के अकॉर्डिंग होती है, वहाँ पर ठंडक ज़्यादा पड़ती है और साथ साथ जो है बेटा जो आइस वगैरह वहाँ पे गिरती है, वो जो शेड हुई रहती पत्तियाँ, उन पे कोई डिफरेंस नहीं आता। ओके, और देखिए जो प्लेन एरिया है वहाँ पर जो है सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे साल, टीक, पीपल। डेसिडुअस ट्रीज क्या होते हैं बेटा? दिस शेड देयर लीव्स वंस इन द ईयर। वो साल में एक बार अपने जो है किसको बेटा? अपने पत्तों को जो है गिराते हैं और उन पर नए पत्ते आते हैं, यानी पतझड़ की स्थिति आती है। डेसिडुअस माने होता है ऐसे पौधे जिनसे जो है पतझड़ जिन पे पाए जाए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ और क्षेत्रों पर भी जो है मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। ओके, एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी मेक द रिच fauna in the Ganga and Brahmaputra basin, and this area is very popular in the world, and the Sundarban Delta is one of the most important biodiversical region of the world. So this is all about the Ganga and Brahmaputra basin. We will meet in next lecture with remaining part of the Ganga and Brahmaputra basin. Thank you.